Yes, why? So let's start the new topic, that is the catalysis of the physical chemistry. So in these topics, uh, the points are the types of the catalysis, okay, catalytic activity, specificity and the selectivity, inhibitors, catalyst poisoning, and deactivations. Then the mechanism of the kinetics of the acid-base catalyzed reactions, effect of pH, then the mechanism and the kinetics of enzyme catalyzed reactions, that is the Michael-Mentis equation, and then the effect of the particle size and efficiency of nanoparticles as a catalyst. So these are the important points we will cover in our upcoming lectures. So today the first important point, that is the types of the catalysis. So anyone can say the what is the use of the catalyst? It speed up the reaction. Okay, it is the speed of the reactions and without involving. Means it is not involved in the reactions. Okay, involvement is zero. Only it is sometimes available the space for the reactions. Okay, sometimes it increase the rate of the reactions, but in and every reaction it is not a part of the reactions, not involved in the reactions. Okay, only speed up the reactions and give the proper place surface available for the increase the rate of the reactions. Okay, so these catalyst means the substances which alter the rate of the reactions without themselves undergoing any chemical change, and such a substances are called as catalyst, and the phenomenon is called as the catalysis. Okay, so certain reactions are also there. Okay, one of the product act as a catalyst. Say reactions are there, example oxidation of the oxalic acid by acidified potassium permanganates. So in this case, rate of the reaction is increased as the reaction is progress due to the formation of the manganese ions, okay, which are the form in the reaction. So these types of phenomena in which the one of the product itself act as the catalyst, so it is called as itocatalysis. Okay, sometimes one of the ingredient act as a catalyst also. So in this case, no external catalyst is required. So these types of catalysis is called as itocatalysis. Okay. In number of the cases, activity of the catalyst is considerable and increased by the addition of the second substances. So which can be said that the which itself has no catalytic property, but such substances which promote the activity or increase the activity, okay, activity of catalyst, are called as promoters also. Promoters are also the part of the chemical reactions. Okay, so which promote the activity of the catalyst. This is called as promoters. So that's the one of the examples is the molybdenum promote the catalytic activity of the iron. So iron is act as the catalyst. Okay, in this case, if you want to increase the activity of the catalytic activity of the irons, at that time molybdenum we can use as a promoter. So promoters are also one of the concept, and the catalyst is also one of the important concept. Both are responsible for the betterment of the chemical reactions. So in case of the Haber process, okay, we generally use the molybdenum promoter in the catalytic activity, okay, to increase the catalytic activity of iron in the Haber process for the formation of the ammonia. So in some cases, catalyst in increasing the rate of the reactions,
or may retard it also. Okay, sometimes we catalyst used to stop the reactions, okay, retard the reactions. Such substances are called as negative catalyst. Such a types of the catalyst are called as negative catalyst. Means वो क्या करेगा, अभी कुछ टाइम हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट को यूज करते हैं स्पीड अप करने के लिए रिएक्शंस को. तो कभी कभी रिएक्शन स्पीड अप नहीं हुई तो हम उसको प्रोमोटर यूज करते हैं उसको स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट को. समटाइम्स हमको रिएक्शन स्टॉप करनी है, रिएक्शन को रिटार्ड करना है, एट दैट टाइम भी कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं. वो कैटलिस्ट को हम जनरली नेगेटिव कैटलिस्ट बोल सकते हैं या फिर इनहिबिटर भी बोलते हैं. ओके, सो दैट कैटलिस्ट आर कॉल्ड एज इनहिबिटर आल्सो. सो एग्जांपल क्या है इसका, बेस्ट एग्जांपल है देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करना है बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन और द डिकम्पोजिशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म is suppressed by adding the small amount of the ethanol. तो इथेनॉल को अगर जो ऐड करेंगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा वहां पर. So the mechanism of the catalysis has shown the energy of activation is lowered by the presence of the catalyst, and the catalyst is effective, so increasing the rate of the reactions because it makes the possible alternative mechanisms. Okay, so characteristics, what characteristics should have the catalyst. Okay, catalyst में कौन कौन से एक्टिविटी होने चाहिए, that is the important part of the. okay, तो हम तो थ्री टाइप्स ऑफ कैटालिसिस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कैटलिस्ट के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज होना चाहिए तो वो भी हम दो पॉइंट हम जो है यहाँ पर देख लेंगे. दैट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. ओके, तो देखते हैं फिर हम. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे हम, द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज, ओके, इन अमाउंट and in chemical composition at the end of the reactions, and however it may undergo some physical change. A small quantity of catalyst is needed. Example, only grams or atoms of the colloidal platinum can be decomposed. Okay, means small quantity is requirement. The catalyst does not alter the positions of the equilibrium in the reversible types of the reactions. Okay, the catalyst does not start the reactions. In the absence of the catalyst, the reaction is in occurring extremely slow, but the catalyst only speed up the reactions. That is the main purpose. Okay, then the important point is that the catalyst does not start the reactions. Okay, catalyst is specific in its nature. Okay, that is the particularly catalyst can bring about the particular change only. Example, if you understand this concept, the catalyst is specific in its actions. That is, particular catalyst can bring about the particular change only. Example, a substance which can act as a catalyst for one reaction may fall to catalyst the other reaction. Example, magnesium oxide का है. Okay, so magnesium oxide can be catalyze the decomposition of only KClO3, while it has no effect on the rate of combination of the SO2 and O2. यानी स्पेसिफिक टाइप्स का कैटलिस्ट स्पेसिफिक टाइप के रिएक्शन में ही यूज होगा, यानी वो कैटलिस्ट हर जगह पर यूज होगा ये कंपलसरी नहीं है. द कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकता कैटलिस्ट, प्रोडक्ट वही रहेगा. ओके, एग्जांपल, KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स KClO2, यानी KClO3 की रिएक्शन कर रहे होंगे अब, इसका डिकम्पोजिशन कर रहे होंगे तो आपको KCl और O2 मिलेगा. आप कैटलिस्ट यूज करो या मत यूज करो, प्रोडक्ट चेंज होने वाला नहीं, प्रोडक्ट वही रहेगा, ओनली स्पीड अप द रिएक्शंस. और क्या प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है कैटलिस्ट के, देखिए, कैटलिस्ट इज पॉइजन्ड बाय सर्टेन सब्सटेंसेस. इट हैज फाउंड दैट impurities of any types, even if present in small amount, inhibit or retard the rate of the catalyzed reaction. These impurities are called as catalytic poisons. तो यहाँ पर poison जो word है वो किसके लिए यूज किया गया,
इम्प्योरिटीज के लिए यहाँ पे यूज किया गया। तो इम्प्योरिटी अगर जो प्रेजेंट है तो पॉइजन यानी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया आपको। कैरेक्टरिस्टिक ये होने चाहिए, मैंने ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैंने नोट्स में भी लिखा कर दिए हैं, नोट्स में है हमारे ऑलरेडी ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देन द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज द टाइप्स ऑफ द कैटालाइटिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट वन इसमें से दो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक है होमोजेनियस कैटालाइसिस, ओके, और दूसरा है हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। होमोजेनियस आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट होमोजेनियस मीन्स व्हाट। It clearly explains that the catalyst and the reactant molecules both are in the same phase and both are usually liquids. सभी के सभी लिक्विड रहेंगे तभी जाके होमोजेनियस कैटालाइसिस बनेगा। ओके, देन द सेकंड वन इज द हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। हेटेरोजीनियस मीन्स यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा? कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स ये दोनों अलग अलग फेज में रहेंगे। ओके, enzymatic catalyst है। catalyst is an enzyme, okay, macromolecular made up of amino acids। enzymatic टाइप के भी कैटालिसिस रहेंगे। तो कैटालिसिस का तो मीनिंग आपको समझ में आ गया। कैटालिस्ट किस फॉर्म में रहेगा उसके बेसिस पर उसके टाइप्स हुए। ओके, जो फॉर्म में रहेगा वो टाइप्स के कैटालिसिस का रहेगा। तो इस तरह से ये जो है सारे क्लासिफिकेशन है। अगर जो हम डीप में देखेंगे होमोजेनियस कैटालाइसिस में, ओके, सो कैटालिस्ट जो है वो प्रेजेंट रहेगा सेम फेज के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर जो देखेंगे हम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ओके, कैटालाइज द कॉम्बिनेशन ऑफ SO2 एंड O2। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है वो कैटालिस्ट बोलकर काम कर रही है। वो भी गैस है, किसके लिए काम कर रही है? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दोनों की जो रिएक्शन होती है उसके लिए नाइट्रो नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट बोलकर काम कर रही है। भी गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस। तो ऑल थ्री आर इन द सेम फेज, इसलिए इस कॉल्ड एज होमोजेनियस कैटालाइसिस। ओके, इट इज द बेस्ट एग्जांपल। और एक एग्जांपल अगर जो देखना है आपको तो एग्जांपल देखेंगे सुक्रोज का। सुक्रोज, ओके, सुक्रोज कौन से स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में। ओके, अब उस साथ में क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजन आयन H2O, वो भी क्या है? लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो ये भी क्या रहेंगे यहाँ पर? एक्ट एज द वन फेज मीन्स होमोजेनियस कैटालाइसिस। सो थ्योरी क्या बोलती है इसकी होमोजेनियस कैटालाइसिस की? एक थ्योरी ये बताती है कि फंक्शन ऑफ द कैटालिस्ट इज ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर होता है वो बैरियर क्रॉस होने के बाद में ही रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है। आपको मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया था। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपने देखे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट का पीक एकदम हाई रहता है, ओके, माउंटेन के जैसा ऊंचा। वो क्रॉस करने के बाद ही प्रोडक्ट बनता है। मीन्स वो जो क्या होगी फिर उसकी उतने हाइट पर जाना है रिएक्टेंट को, मीन्स दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। सो वो जो अमाउंट एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट वो जो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी लग रही है उसको उतने पीक पे जितना पहुंचना है वो उसको डाउन कर देता है। मीन्स द एक्टिवेशन एनर्जी अगर जो कम हो गई तो वहां पर एनर्जी कम लगेंगी, ओके, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो थ्योरी ये बताती है कि फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट इज टू ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइड द अल्टरनेटिव पाथ। फॉर दिस पर्पस ये सब काम करती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका।
ओके, उसमें आप रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस देख सकते हैं। ओके, रिएक्शंस देख सकते हैं आप H2 इसकी इथिल अल्कोहल की भी H2SO4 के साथ भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो होमोजेनियस टाइप्स के रिएक्शन में आते हैं। अब अगर जो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस देखेंगे, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, कैटलिस्ट जो है दूसरे फॉर्म में रहेगा। जनरली हम जो है रिएक्टेंट जनरली लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, और कैटलिस्ट जो रहेगा डिफरेंट फॉर्म में रहेगा। अब उसका फॉर्म जो कैसा रहेगा, रिएक्टेंट से भी अलग रहेगा, प्रोडक्ट से भी अलग रहेगा। मोस्ट केसेस में क्या होता है, कैटलिस्ट जो है ऐसे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में सॉलिड के फॉर्म में होता है। ओके, और रिएक्टेंट जनरली जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जनरली वो गैस के फॉर्म में होते हैं या लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। सो इन दिस केस, अब ऐसे केस में रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो है जो फॉर्म है वो लिक्विड है, और जनरली जो है कैटलिस्ट जो यूज कर रहे हो जनरली सॉलिड है। तो सॉलिड रहा तो जनरली हम ऐसे केसेस में कैटलिस्ट जो है मेटल बोलकर यूज करते हैं, या फिर मेटल के ऑक्साइड बोलकर यूज कर सकते हैं। सो ऐसे केसेस में जो यूज करेंगे हम मेटल्स, तो फाइनली पाउडर डिवाइडेड स्टेट में रहेंगे, और ये जनरली सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा सरफेस अवेलेबल रहेगा रिएक्शंस के लिए। जितने फाइनली पाउडर फॉर्म में रहेगा कैटलिस्ट, उतना ही ज्यादा उसका सरफेस अवेलेबल रहेगा फॉर द इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शंस। ओके, तो एग्जांपल अगर जो देखना है हमारे पास, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल इससे पहले ही देखे हैं। प्लेटिनम हम यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, पैलेडियम हम यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। ओके, प्लेटिनम पैलेडियम क्या करते हैं, अपना सरफेस अवेलेबल करके देते हैं रिएक्शंस के लिए। तो उनके सरफेस पर रिएक्शंस होते हैं, जैसा कि अगर जो आपको SO2 की रिएक्शन O2 के साथ करना है, SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, इसका कन्वर्जन काय में होगा, SO3 में होगा। ओके, तो इसका कन्वर्जन फास्ट करने के लिए वहां पे सरफेस बोलकर प्लैटिनम आप अवेलेबल कर सकते हैं। तो वो सरफेस के ऊपर SO2 का कन्वर्जन, SO2 प्लस O2 का कन्वर्जन SO3 के अंदर होगा। और कौन सा सरफेस है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी आप सरफेस अवेलेबल करके दे सकते हैं प्लैटिनम का, सॉलिड का, उसका कन्वर्जन H2O में होगा, O2 गैस में होगा। ओके, तो थ्योरी ये बताती है इसकी, थ्योरी जो बताती है हेट्रोजीनियस की, वो एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड है, एड्सॉर्ब होना। इट इज ADSORB, एड्सॉर्प्शन। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन। आवाज आता है ना? Yes, sir. हाँ, तो एड्सॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन, ADSORB। तो एड्सॉर्प्शन मींस जो कैटलिस्ट का सरफेस है, सरफेस, वो सरफेस अवेलेबल रहेगा। इमेजिन करिए सॉलिड है, सॉलिड का सरफेस जो रहेगा वो अवेलेबल रहेगा काय के लिए, रिएक्शंस के लिए। तो वो सरफेस के ऊपर ये रिएक्टेंट जाके एडहियर होंगे, एड्सॉर्ब होंगे, और वो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। तो ये थ्योरी है किसकी, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस की। ओके, ये थ्योरी के ऊपर वो काम करता है। सो हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस किसकी वजह से काम कर रहा है फिर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज ऑन इट्स सरफेस। कोई भी मेटल रहेगा उसकी अलग अलग वैलेंसीज रहेंगी। ओके, और दिस वैलेंसीज ऑफर एन अपॉर्चुनिटी, और ये क्या करेंगे, अवेलेबल करेंगे अपॉर्चुनिटी टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू अंडरगो द केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस, ओके, ऑफ द कैटलिस्ट, एंड दिस सिचुएशन इज बेटर, okay, and for the conversion of the reactant into the products। तो इस तरह से इसके अंदर भी यहाँ पर जो है हमने इसकी थ्योरी भी देखी है। ओके, एड्सॉर्प्शन का कंसेप्ट भी आपको समझता है। ओके, वो बेसिस पे आपको फिर वहाँ पर हमारे पास कुछ नोट्स भी अवेलेबल करके दिए हुए। नोट्स में भी मैं एक मिनट आप रुकिए। विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालाइसिस बोलकर भी एक पॉइंट है। ओके, यहाँ पे टाइप ऑफ कैटालाइसिस है जिसमें होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस के बारे में दिया हुआ है। के बाद
theory of the homogeneous catalysis भी दिया वाला है, examples है, heterogeneous catalysis है उसकी theory दिए वाली है, example जैसा कि निकेल कैटलिस्ट बोलकर आप यूज कर सकते हैं। तो इतने उतने पॉइंट्स हमने आज कवर किए हैं। एसिड बेस कैटालिसिस जो है इसके बाद का पॉइंट है।